Hello students, this is Mrs. Bharati Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana, and today we are going to study about built-in functions in Fortran, executable and non-executable statements, and input and output statements. बिल्ट इन फंक्शंस फोर्ट्रॉन में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको डायरेक्टली कंप्यूट किया जा सकता है. दे आर नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस और इंट्रिंसिक फंक्शंस. दीज आर रेडीमेड फंक्शंस प्री रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये प्री रिटन होते हैं, इसका मतलब कि हमें हर बार इनको कैलकुलेट करने के लिए अलग से इनके लिए हमें प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता. इनके लिए ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोविजन होता है, प्री फेड होते हैं ये किसी भी लैंग्वेज में. सो ये रेडीमेड फंक्शंस होते हैं. अ लाइब्रेरी फंक्शन इज मेड अप ऑफ ए फंक्शन नेम followed by one or more arguments. Arguments means variable name or expression within parenthesis. For example, if we want to calculate square root of x, तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में सिर्फ sqrt और ब्रैकेट में x लिखने की ज़रूरत है और कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है. हम ये इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हमारे प्रोग्राम को अपने आप पता चल जाएगा कि लाइब्रेरी से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उठा के और x की स्क्वायर रूट कैलकुलेट करनी है. या अगर हमें x का log कैलकुलेट करना है तो उसके लिए लाइब्रेरी फंक्शन है a log x. यहाँ पे जो हमें ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ब्रैकेट में जो हमने क्वांटिटी लिखी x, that is the argument, and the next thing which we should keep in mind is that the names of the functions are according to the naming rules. जो implicit rules हमने पढ़े थे जिसके अनुसार I, J, K, L, M, N इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले सभी फंक्शन नेम्स इंटीजर्स ट्रीट होते हैं और इनके अलावा दूसरे अल्फ़ाबेट से जो नेम स्टार्ट होते हैं दे आर रियल नंबर्स, दे आर ट्रीटेड एज रियल नंबर्स. सो क्योंकि log ऑफ x इज अ रियल नंबर, उसमें डेसिमल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, सो वी कैन नॉट स्टार्ट इट एज l, सो दिस इज रिटन एज a log x. These are some of the commonly used built-in functions. Function int(x), that is int x, it converts a real x into integer type. Nintx, nintx, it converts a real integer into a real number into integer by rounding off. इंट में डेसिमल पार्ट कट हो जाता है, निंट में राउंड ऑफ हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव फ्लोट एक्स विच कन्वर्ट्स an integer into real. absx, that calculates the absolute value of x. Similarly, we have square root of x, sin x, cos x, tan x, a sin x, a cos x, a tan x. These are inverse functions. Sin inverse x calculate करना है तो a sin x, cos inverse calculate करना है तो a cos x, tan inverse calculate करना है तो a tan x, and similarly exponential x, log x, and there are many more built-in function in Fortran, but these are the ones which are most commonly used. Executable and non-executable statements. Every statement is either executable or non-executable. So what do we mean by executable or non-executable? An executable statement is converted into object code, that is machine language, by the compiler, and accordingly an action is taken by the computer such as performing arithmetic, uh, reading data from an external medium, making a decision, etc. So जो statements को computer object code में machine language में convert करके compile करता है, accordingly उस पे action लेता है computer, that is an executable statement. For example, read, write, go to,
if, do, ये सभी स्टेटमेंट्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. Then there are statements which are non-executable, which are not converted into object codes by the computer. These help the compiler to allocate space to determine types of variables, input, output, formats, etc. In general, non-executable statements are completed before execution of the first executable स्टेटमेंट. सो ये वो स्टेटमेंट होते हैं जो कंप्यूटर को किसी कैलकुलेशन करने के लिए नहीं यूज करने होते, लेकिन ये कंप्यूटर को और तरह की जानकारी देते हैं. फॉर एग्जांपल कमेंट स्टेटमेंट, टाइप स्टेटमेंट, फॉर्मेट स्टेटमेंट, dimension, implicit, and etc. We shall also be studying these statements in our further lectures. इनमें से हम comment और type statement already पढ़ चुके हैं. अब हम आते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस पे, ऑल्सो रिटन एज I/O operations. An input operation transfers the input data from one of the input units to the memory of the computer. Input ऑलरेडी हमें मालूम है, इनपुट क्या होती है, जो जिस डेटा को यूज करके हम आगे कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं, कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, दैट डेटा इज द इनपुट. सो इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. और ये इनपुट हम कैसे अचीव करते हैं? वी यूज अ रीड स्टेटमेंट. सो इनपुट के लिए हम रीड स्टेटमेंट यूज करते हैं. Read statement is an executable statement and it is used for transferring data from input device to main memory of the computer. An output operation transfers the computed results from the memory of the computer to one of the output units. तो एक बार हमने डेटा रीड किया, उस पे बेस्ड कंप्यूटर ने कैलकुलेशंस की और जो भी रिजल्ट आया वो रिजल्ट अब हमें आउटपुट में चाहिए. सो उसके लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट विच इज अ राइट स्टेटमेंट और ए प्रिंट स्टेटमेंट वो यूज करते हैं. A write or a print statement is used to take out the information from the computer after execution of the program, and these are also executable statements. So input के लिए read statement, output के लिए we can have a write statement, या हमने directly printer से print out लेना है तो we can have a print statement. These input output statements, they consist of two parts. First part is executable part. This part commands certain items to be read into the memory or out of it. The second is declarative part or format statements. This part gives information on the exact form in which data will be typed or displayed. This is non-executable part. The input-output statements are of two types. रीड स्टेटमेंट या राइट स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज अ फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट, जिसे हम लिस्ट डायरेक्टेड भी कहते हैं. सो लिस्ट डायरेक्टेड और फ्री फॉर्मेट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जिसमें कंप्यूटर इनपुट को किसी ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग रीड करता है. And the second form is, the second type of input output statement is format directed input output statement. इसमें अगर हमें इनपुट या आउटपुट किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में चाहिए तो वो फॉर्म हमें बतानी पड़ती है कंप्यूटर को, which is different from the default set of rules, and then for that we have to use format statements. So ये आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो ये चीजें एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी. So first of all we will discuss list directed input statement, which is the read statement. So list directed read statement. It reads data from standard input device. स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया हमारा, हम अपनी जो कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं कीबोर्ड से फीड करते हैं. सो इट रीड्स डेटा फ्रॉम दिस
standard input device and stores it in the variable list with a default format. तो जो हमने इनपुट दी है उसके लिए हम अपने प्रोग्राम में ऑलरेडी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुके होंगे, तो ये इनपुट को डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल, डिफरेंट लिस्ट ऑफ वेरिएबल में स्टोर करेगा with a default format. The syntax is read, capital letters में READ, read, bracket, star, comma, star, variable list, where the first star in the bracket represents the default input device, which is a keyboard. The second star represents the default format. हर कंप्यूटर का अपना अलग डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर. एंड द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमास. मान लिया हमारे वेरिएबल्स थे x, y, z, तो यहाँ पे उन सब वेरिएबल्स की लिस्ट आ जाएगी x, y, z. फॉर एग्जाम्पल, the following statement instructs the computer to read values of A and B from the default input device, that is the keyboard. तो अगर हमने स्टेटमेंट दिया इनपुट के लिए read ब्रैकेट स्टार कॉमा स्टार A कॉमा B, तो इसका क्या मतलब है कि हमने इनपुट देनी है अगेंस्ट द वेरिएबल्स A एंड B फ्रॉम द डिफॉल्ट डिवाइस कीबोर्ड, और उसका जो भी फॉर्मेट होगा हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं, वो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट खुद अपने आप उठाएगा. List directed output statement, which is the list directed write statement. The syntax of list directed write statement is write bracket star comma star output list. सिमिलरली अगर हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पे आउटपुट नहीं लिखवानी है, हमें सीधा प्रिंटर को कमांड देनी है कि जो भी आउटपुट आए कैलकुलेशंस होने के बाद उसका प्रिंट आउट हम ले लें, तो फिर हम सीधा प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं आउटपुट के लिए. एंड द सिंटेक्स इज प्रिंट स्टार स्टार आउटपुट लिस्ट, वेयर द just as we had in read statement, first star is for the default output device, which can be the screen of the computer in case of write statement and the printer in case of print statement. Second star represents the default format and the output list is the list of output variables separated by commas. For example, अगर हमने statement दिया write ब्रैकेट में स्टार कॉमा स्टार एक्स वाई, तो ये स्टेटमेंट कंप्यूटर को बताता है कि एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज कैलकुलेट होके आई हैं हमारे प्रोग्राम में, उनको एक प्री डिफाइंड डिफॉल्ट फॉर्मेट के अनुसार राइट करना है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. फॉर एग्जांपल, लेट अस से ये जो दो वेरिएबल्स हमने लिए एक्स और वाई, इनकी जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई given program के अनुसार, that is 4.6 and 5.81, then by default it will be displayed as 4.600000, 5 0 हो गई, and 5.81 4 zeros. With we find that in these two numbers there are 7 significant figures. So ये एक default format है given computer में कि वो हर number को 7 significant digits के साथ display करता है. So if we use a print statement, then the computer will print this information directly. अब हमने देखा कि जो डिफॉल्ट फॉर्मेट आई आउटपुट में, जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया उसमें ढेर सारी जीरोस थी. कई बार हमें इरिटेट करती हैं इतनी सारी जीरोस, वी डोंट वांट देम. तो ऐसे में फिर हम कंप्यूटर को फॉर्मेट बताते हैं कि हमें जो आउटपुट चाहिए या जो इनपुट हम कंप्यूटर को देंगे वो किस फॉर्म में देंगे, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे एंड मेनी मोर थिंग्स. सो उसके लिए फिर हम फॉर्मेटेड रीड स्टेटमेंट and formatted output statement, that is write statement, use करते हैं. So the general form of format directed read statement is read bracket u comma fs variable list fs format list of specification. Now what does this all mean? अब यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि read के बाद जो brackets हैं उनमें stars की जगह इन दो quantities ने ले ली हैं. What is u? U is the unit number assigned to the input device to be accessed and it is an integer.
fs is the format statement label number in the program. हम जिन statements को label number देते हैं, जैसे कि equation number देते हैं हम mathematical derivations में, तो उस फॉर्मेट स्टेटमेंट को हम एक लेबल नंबर देते हैं, वो लेबल नंबर हम यहाँ लिखेंगे. सो fs is the format statement label number in the program, and variable list is the list of input variables separated by commas. This format directed read statement is always used with a format statement. क्योंकि जब हम format हम सिंटेक्स में बता रहे हैं कि फॉर्मेट होने चाहिए हमारे वेरिएबल्स की लिस्ट, तो किस फॉर्म में हमें ये इनपुट देनी है वो हमें फॉर्मेट स्टेटमेंट से बताना पड़ेगा इसके बाद वाली लाइन में. नाउ हमने सबसे पहले यूज किया यूनिट नंबर. Unit number is every input or output device is identified by a unit number. हर input या output device का एक unit number होता है. इनमें से दो नंबर प्री डिफाइंड हैं और they are always predefined at the start of every Fortran program. Unit 5 जो है 5 number, it corresponds to standard input which is the user terminal, यानी कि जो यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसके लिए यूनिट 5, एंड यूनिट 6 corresponds to standard output which may be again the user terminal or a printer. Then format directed output statement or format directed write statement or print statement. The general form of format directed write statement is similar to what we had in read statements. Write u comma fs output list, and fs format list of specifications, and similarly for print statement print fs. यहाँ हमें यूनिट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, यू देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने प्रिंट लिख दिया. इसका मतलब जो आउटपुट है वो सीधा प्रिंटर पे ही जाएगी, वो और कहीं नहीं जाएगी. सो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई कि ये आउटपुट कहाँ सेंड करनी है. सो एज वी सेड अर्लियर, यू इज द यूनिट नंबर असाइंड टू द आउटपुट डिवाइस. हमारे कंप्यूटर के लिए या प्रिंटर के लिए द वैल्यू ऑफ यू इज 6. fs is the format statement. हम इसके आगे पढ़ेंगे फॉर्मेट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. फॉर्मेट स्टेटमेंट का लेबल नंबर है fs and the list of variables for output separated by commas. And just like read statement, the format directed write statement is also always used with format statement which is given in second line above. For example, फॉर्मेट डायरेक्टेड रीड स्टेटमेंट हो गया रीड 520 a कॉमा b, और 20 लेबल नंबर पे आ गया फॉर्मेट s1 कॉमा s2. यहाँ पे 5 इज द यूनिट नंबर यूज्ड फॉर कीबोर्ड इनपुट. s1 एंड s2 आर फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस डिस्क्राइब्ड इन फॉर्मेट स्टेटमेंट्स. इनको हम आगे पढ़ेंगे. एंड सिमिलरली फॉर द राइट स्टेटमेंट. अब हम आ जाएं कि फॉर्मेट स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं और इनको लिखने का सिंटेक्स क्या है. फॉर्मेट स्टेटमेंट इज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. इट स्पेसिफाइज द एग्जैक्ट फॉर्म in which data will be typed or displayed and gives more freedom to control the input or output. The general form of format statement is fs, that is the format statement label number. fs format format और ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस. लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन मीन्स CCC, specifier 1, specifier 2 and so on. Now what do these things mean? CCC stands for carriage control character. It is used only for printer output. So it is optional. अगर हमने प्रिंट आउट लेना है और वो भी प्रिंट आउट के समय हमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट देना है तो ये यूज होगा, अदरवाइज हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होती. So it resets the printer by moving the printing head to column 1. There are 4 carriage control characters.
इन्वर्टेड कॉमास दे मीन सिंगल वर्टिकल स्पेसिंग देनी है। अगर हम फॉर्मेट में ब्रैकेट में सिर्फ 2 इन्वर्टेड कॉमास लगा दें, इट मीन्स हर लाइंस के बीच में सिंगल वर्टिकल स्पेसिंग देनी है। 0 लिख दें ट्रिपल सी की जगह, इट मीन्स डबल वर्टिकल स्पेस देनी है 2 लाइंस के बीच में। इफ वी राइट 1 फॉर एफएस फॉर्मेट ब्रैकेट में 1, इट मीन्स एक नया पेज ले लेना है। जिस भी क्वांटिटी के लिए हमने ये फॉर्मेट दिया है वो नए पेज पे प्रिंट होगा। इफ वी राइट प्लस, it means no advance, reset, beginning of the current line. So these are 4 carriage control characters. फॉर्मेट स्टेटमेंट में ट्रिपल सी के बाद हमने लिखा है स्पेसिफायर 1, स्पेसिफायर 2, स्पेसिफायर 3 एंड सो ऑन. So these are format specifiers. These specify the type of data and output instructions for each output item. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो डेटा है वो इंटीजर है या रियल है या किस फॉर्म में है, उसके लिए कितनी स्टोरेज लोकेशंस कंप्यूटर को रिजर्व रखनी है. सो वो सब इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में आ जाती है. सो दिस टेबल शोज द डिटेल्स. इफ वी राइट आई, it means the function is integer and the format specifier is ri omega or w, riw. F stands for real function and the format specifier is rfw dot d. E stands for real function in exponential form. The format specifier is rew dot d. A stands for character variable, format specifier is AW. L stands for logical variable and format specifier is LW, and inverted commas enclose the character strings and the character is written in inverted commas, where W is the field size. It is used to define total positions reserved for the value of one variable. The number of columns in the field is called the width of the field. For example, अगर हमारे पास एक नंबर है 135.465, तो इसकी कितनी width है? इसकी width है 7. 6 डिजिट्स हो गए इसमें और एक डेसिमल हो गया. So that is its field size. D is the decimal location, that is it specifies the number of decimal places which our output should have. यहाँ पे एक बात मैं साफ कर दूं कि जनरली इनपुट के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती. इनपुट के लिए हम फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं. मोस्टली फॉर्मेटेड स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर राइट और प्रिंट स्टेटमेंट्स. R is the repeat factor. That means it tells the computer the number of times the descriptor is to be repeated. यहाँ पे जो ये symbols हैं I for integer, F for real, E, A, L, inverted commas, these are known as added descriptors. For example, let us say we want to specify the format for integers. कि अगर आउटपुट में कोई क्वांटिटी, कोई वेरिएबल की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में है और उसके लिए हमें फॉर्मेट देना है कि आउटपुट हमें किस फॉर्म में चाहिए. द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज RIW. सो हाउ विल वी राइट इट? रीड *10m,n. रीड के बाद स्टार ब्रैकेट में मीन्स the input device is default device which is the keyboard. 10 is the label number, that means statement number 10 पे हमने जो भी फॉर्मेट दिया है हमारी इनपुट उस फॉर्म में होगी. एंड द वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स आर m, n. सो स्टेटमेंट लेबल नंबर 10 पे हमने फॉर्मेट दिया है I3, I3. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फॉर्मेट 2I3. What does this mean? It means कि जो पहला वेरिएबल है m,
जब हम उसको इनपुट करेंगे तो m इज एन इंटीजर, i फॉर इंटीजर, और उसके लिए 3 कॉलम्स की स्पेस कंप्यूटर को रिजर्व करनी है. So m may be a single digit integer, it may be a 2-digit integer, it may be a 3-digit integer, लेकिन वो 4 डिजिट नहीं हो सकता क्योंकि 4 डिजिट होगा तो हमने इतनी स्पेस उसके लिए रिजर्व नहीं की है अपने प्रोग्राम में. So it can be at the most 3-digit number. So we have reserved 3 columns for input m. Similarly n के करस्पॉन्डिंग जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं वो भी इंटीजर फॉर्म में है और उसके लिए भी हमने 3 कॉलम स्पेसेस, 3 फील्ड्स रिजर्व की हैं. सो दैट इज ऑल्सो i3. और क्योंकि दोनों m और m दोनों के लिए सेम स्पेसिफिकेशंस हैं तो इसको हम 2i3 भी लिख सकते हैं. सो दैट इज r की वैल्यू यहाँ पे 2, बिकॉज दैट इज अ रिपीट फैक्टर, रिपीट हो रही है हमारी इनपुट की फॉर्मेट. I is for integer and V is the width of the field. Next example is a real function in fractional form. Fractional form means decimal के बाद digits होंगे इस number में. The format specifier is rfw.d. R is the repeat factor. F stands for floating point, that is real number. W is the field width and D gives us the डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल कहाँ पे लगना है. सो हमने इनपुट रीड की, रीड स्टार 11 x, y, z. इट मीन्स कि हमने इनपुट जो रीड कर रहे हैं वो कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं डिफॉल्ट डिवाइस से, और उस इनपुट के लिए जो फॉर्मेट हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो 11 नंबर स्टेटमेंट में दिया हुआ है. 11 नंबर पे हमने फॉर्मेट स्टेटमेंट दिया है एंड द इनपुट वेरिएबल्स आर, जो भी इनपुट हम रीड करेंगे वो x में, y में और z में स्टोर होगा. सो फॉर्मेट स्टेटमेंट हमने दिया f6.2, f6.2, f6.2. दैट मीन्स x के लिए भी f6.2. इट मीन्स x इज अ रियल नंबर जिसमें 6 प्लेसेस की डेसिमल से पहले वाला पार्ट है, वो 6 प्लेसेस, 6 विड्थ वहां के लिए रिजर्व करनी है और डेसिमल के लिए सिर्फ 2 कॉलम्स रिजर्व करने हैं. सिमिलरली फॉर y एंड z, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 11 फॉर्मेट और ब्रैकेट में 3 f6.2. 3 इज द रिपीट फैक्टर बिकॉज तीनों वेरिएबल्स के लिए सेम फॉर्मेट हम रिपीट कर रहे हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है अगर हमारा रियल नंबर तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज rew.d. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इनपुट नंबर है 16.2 इंटू 10⁻11, दैट इज 16.2 E11, तो इट इज फॉर्मेटेड एज read star 20p. द गिवन नंबर इज corresponds to the variable p. स्टार वी ऑलरेडी नो कीबोर्ड के लिए है और 20 नंबर पे हमने फॉर्मेट स्टेटमेंट दिया हुआ है. 20 नंबर पे फॉर्मेट E6.2. दैट मीन्स 6 प्लेसेस आर टू बी रिजर्व्ड फॉर द digits of the real number and it should be in the exponential form. और जो उसका मैंटिसा है उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस एट द मोस्ट हो सकती हैं. कैरेक्टर डेटा अगर हमें रीड करना है या राइट करना है तो द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज AW. फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारा डेटा है श्याम, तो इसमें अब हमारे 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स हैं. हो सकता है हमारे इसके करस्पॉन्डिंग हम जनरली जितने डिजिट्स होते हैं या जितने कैरेक्टर्स होते हैं उससे ज़्यादा फील्ड रिजर्व करते हैं कि किसी टाइम हमें अपने प्रोग्राम में नाम बदलना पड़ गया, वेरिएबल चेंज करना पड़ गया, उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिजिट्स बढ़ाने पड़ गए तो हमारे पास फील्ड अवेलेबल हो. सो हम पहले तो स्पेसिफाई करेंगे कि जो B है दैट इज अ कैरेक्टर और उसके लिए हमें 6 स्पेसेस चाहिए. सो हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस वेरिएबल को कैरेक्टर B*6. दैट मीन्स B इज ए कैरेक्टर हैविंग अ फील्ड ऑफ 6. सो रीड *11B. कीबोर्ड से हमने इनपुट रीड करनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन एट लेबल नंबर 11 एंड 11 पे हमने फॉर्मेट दे दिया A6. That means
The given variable b is a character, a stands for character, और उसकी width है 6. हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को एंड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम स्टॉप स्टेटमेंट देते हैं. सो जब हमारी सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाती हैं, देन वी स्पेसिफाई दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन should stop. It is an executable statement and it indicates the logical end of the program. स्टॉप के बाद हर प्रोग्राम में हम एंड स्टेटमेंट देते हैं. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द फिजिकल एंड ऑफ द प्रोग्राम. इट मीन्स दैट देयर आर नो मोर स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम एंड इट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. So with that we finish this chapter. These are some of the frequently asked questions on the topics that we have studied today. Please do these questions. Thank you so much. Have a nice day.